Okay, here. So we can use the relative set of steps to generate our root locus for different values of for positive or negative values of k and for negative and positive feedback. Any questions till now? No, sir. Okay. Then, in fact, we dwelled into the design portion, which is, in fact, this is a part of chapter number 4, but just for the sake of completeness, I have kept it in chapter number 4. हालांकि इसको chapter number 5 में होना चाहिए था. But anyways, so we started designing our systems with the root locus, and we said that to meet the design objectives, the poles and zeros can be added to the system, and you are familiar with it. In general, the important thing is, which is encircled in red, that in general, addition of the pole makes a system less stable. Addition of the zeros will make a system more stable, and addition of the pole reduces the steady state error. Though the system will be less stable, but the steady state error will be reduced. And in that context, we started our some examples, some systems, and we started with the proportional compensator. जिसके जो compensator है आपका, that is just उसके अंदर एक पैरामीटर k है जो कि चेंज हो रहा है. So no addition of or removal of poles के साथ हम हैंडल कर रहे हैं. So the closed loop transfer function का जो आपका जो root locus है आपका, that is shown here. That is a root locus, and we have gone through last time with the example of how we designed this root locus. The important thing was k. अब आपके पास TFS, the closed loop transfer function, was this thing for the previous root locus and the previous system, and then we have compared it with the S square is characteristic equation के साथ हमने इसे compare किया. We know this because that is involving natural frequency, that is involving damping ratio and all that. And if we are interested in the minimum settling time, we know that our damping ratio should be 0.707. That's the concept in chapter number 2. And from there, you can get omega n, which is the natural frequency, that would be equal to, इसको compare किया इन दो equation को, you have got k plus 1 square root, and you have obtained that for the minimum settling time, जो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1. अब आप अपना ट्रांसफर फंक्शन जो है वो k इज इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट कर सकते हैं. अब आपको पता चल सकता है k इज इक्वल टू 1 पे आपके पोल्स जो हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं. सो दैट्स द एनालिसिस काइंड ऑफ थिंग. और इसी तरह से k इज इक्वल टू 1 पे आप अपनी स्टेप एरर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. That is steady state step error, which is equal to 1 over 2, and that is obvious. अगर error मेरी 1 over 2 है, तो in that case what is happening, मतलब है जो आउटपुट है मेरी वो 1 नहीं है. स्टेप इनपुट हमने दी थी, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि आपके पास जो आउटपुट है दैट शुड बी समथिंग लाइक दैट, वो 1 को अप्रोच करनी चाहिए. बट इन दिस केस क्या हुआ, y ऑफ t जो है, y ऑफ इंफिनिटी जो है, दैट इज नॉट अप्रोचिंग 1, रादर इट इज एट 0.5 बिकॉज अवर एरर इज 0.5. सो दिस इज माय एरर which is 0.5. So any questions related to this example and this concept? No, sir. Okay, great. Then what we did, इसी एग्जाम्पल में इसी ट्रांसफर फंक्शन के साथ, एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम. जी बात कर रहा हूँ. जी बिस्मिल्लाह. जी जी सर अस्सलाम वालेकुम. सर अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह. जी 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 ठीक है.
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर। ओके, देन व्हाट वी डिड कि अब हमने जो कॉम्पनसेटर है उसको हमने चेंज किया है, एंड दिस कॉम्पनसेटर इज इन फैक्ट introducing a pole at s is equal to 0, and we have already said कि introducing a pole in your system, that would be making the system less stable, and that is obvious. We have gone through the design of this root locus, and we can see that हमारा जो रूट लोकस है दैट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट, और ये जो है आपका स्टेबिलिटी जो है उसकी जेओपार्डाइज हो रही है, बिकॉज फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ के ये जो सिस्टम है आपका वो अनस्टेबल हो रहा है, एंड दैट इज ऑब्वियस फ्रॉम हियर एज वेल कि अब आपके पास जो स्टेडी स्टेट एरर है दैट हैज गॉट ऑसिलेशंस, और आपको जो है सिस्टम की इंस्टेबिलिटी जो है वो आपको नजर आती है। एनी क्वेश्चंस? No. And then we have introduced zero, सेम सिस्टम जो पहला हमारे पास सिस्टम मौजूद था, इसी सिस्टम के अंदर ही हमने जीरो ऐड किया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी आर सीइंग कि अब आपका जो रूट लोकस है दैट हैज मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, सो ये अब हमने, मेरा ख्याल है कि इसको जल्दी में ही किया था, सो आई होप कि यू हैव गॉन थ्रू इट। इसके रूट लोकस कंस्ट्रक्शन में कोई अगर इशू है तो प्लीज़ बता दीजिए। Probably you have gone through it because I haven't touched in detail. Any question? नो क्वेश्चन सर। Okay. क्या नाम है आपका? इब्राहिम सर। जी इब्राहिम, ये बताइए कि अगर मुझे चेक करना हो कि कौन सा रियल पोर्शन ऑफ द रूट लोकस है, वो रूट लोकस पे रियल पोर्शन एग्जिस्ट करेगा, व्हाट शुड वी डू? Sir, we'll add test points. नहीं, आई एम आस्किंग फ्रॉम इब्राहिम। सर आई कांट रिमेम्बर राइट नाउ सर। तो बेटा आपने कहा नो क्वेश्चन। सर क्योंकि सर अभी याद नहीं आ रहा था सर। जी ईशा बोलिए। Sir, we place test points और फिर उससे हम चेक करते हैं कि हमारे राइट साइड पे नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस कितने हैं। तो अगर नेगेटिव उसके केस में अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस हो तो दैट पोर्शन इज इंक्लूडेड, और अगर इवन हो तो इट्स नॉट। ठीक है, फाइन। और इसी तरह से असिम्प्टोट्स, इस केस में अगर हमने देखने हो तो कितने असिम्प्टोट्स आपको नजर आ रहे हैं? सर n माइनस m जी बोलें, कितने हैं फिर वो n माइनस m? 1। 1। सो हमारे पास एक असिम्प्टोट है और उसका एंगल जो है वो 180 डिग्री है, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव रियल एक्सिस की तरफ है, और सेंट्रॉइड जो है दैट इज इन फैक्ट जीरो पे है। सो अगेन डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज सेंट्रॉइड इज अलोंग द नेगेटिव रियल एक्सिस। ब्रेक अवे पॉइंट आपने फाइंड आउट किए, सो व्हाट इज द ब्रेक अवे पॉइंट?
रूट लोकस आपके सामने है मकसद, आप डायरेक्ट यहाँ से चीजों को बता सकते हैं कि कौन सा है ब्रेक अवे पॉइंट। सर Minus? -1. -1 पे आपका रूट लोकस है। इज देयर एनी ब्रेक इन पॉइंट? Sir, -3? -3 पे ब्रेक इन पॉइंट है। एंड ऑफ कोर्स रूट लोकस जो है उसने स्टार्ट किया यहाँ से, ये पोल ये इस तरफ गया, ये इस तरफ आया, ये इस तरह से आ रहा है। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक जो है वो इधर चला गया है अप टुवर्ड्स जीरो, के इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, और दूसरा जो है वो इधर चला गया है फॉर के इज इक्वल टू इन्फिनिटी इस साइड पे। ठीक है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज रूट लोकस पे तो हम बहुत ज्यादा डिस्कशन कर ही चुके हैं, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि k इज इक्वल टू 1 पे अब आप अपना अगर ट्रांसफर फंक्शन देखें, फिर आपको अपने रूट्स, अगर आप अपने रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। और यहाँ से जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो ये है कि स्टेप रिस्पॉन्स जो है आपका दैट हैज़ गॉट लेस स्टेडी स्टेट एरर एंड इज फास्टर, और उसके पास ऑसिलेशंस जो हैं वो उसके अंदर ऑसिलेशंस भी नहीं हैं। सो द स्टेबिलिटी कैन बी कंफर्म्ड फ्रॉम रूट लोकस एंड द स्टेबिलिटी कैन बी कंफर्म्ड फ्रॉम द स्टेप रिस्पॉन्स एज वेल। एनी क्वेश्चंस? No, sir. Okay. So that was our chapter number 4, just a revision what we did last time, and now we move towards the new thing, which is in fact चैप्टर नंबर 5 से। अब जो हमने पहला सिस्टम यूज किया था जिसमें हमारे पास जो कंपनसेटर था इट वाज जस्ट proportional compensator. From now on we will be, because we are not changing any poles and zeros, adding poles or zeros, so that's why we will be calling that uncompensated system. So अगर poles and zeros की location हम change नहीं कर रहे, cancel नहीं कर रहे, तो from now on that system will be an uncompensated system. So it's the same system which we were using in the first example, proportional compensator जिसको हमने कहा था. So proportional compensator from now on will be called as uncompensated system. So जब हम डिजाइन करते हैं तो we basically start using a simple unity feedback system. This is our uncompensated or simple unity feedback system, and in which we adjust the gain to get the stability and good steady state performance. But if uncompensated system is unable to meet the design goals, compensators are added which alter the root locus. अब आप फिर दूसरे compensators जो हैं वो आप ऐड करना शुरू करेंगे जो कि आपके पोल्स को ऐड कर रहे होंगे, जीरोस को ऐड कर रहे होंगे, या पोल्स और जीरोस को रिमूव कर रहे होंगे, और इनफैक्ट आपकी जो रिक्वायरमेंट है स्टेबिलिटी की और आपकी परफॉर्मेंस की, just to meet those. Any questions regarding this? सर पोल्स एंड जीरोस हम वाई ऑफ एस के बाद इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर के के थ्रू करेंगे सर? इसी उसमें ये देखें, ये आपके पास एक सिस्टम है नाउ, दिस इज कैस्केड कंपनसेशन सिस्टम है। दिस इज अगर मैं इसको के कर दूं तो दैट्स एन अनकम्पनसेटेड सिस्टम। अगर मैं इसके अंदर कोई एस का कंपोनेंट्स यानी जीरोस और पोल्स जैसे मैं के ओवर एस कर रहा था, इन दैट केस दैट वाज अ काइंड ऑफ पीआई, प्रोपोर्शनल इंटीग्रेटर बन जाता है, और के एस और S-1, S-2 जैसे हमने पिछली एग्जांपल्स हमने की हैं. So we are changing these compensators and as a result of that we are getting our performance specifications. Hope I have answered your question. Yes sir. ठीक है, so GCFS जो है ये आप चेंज करते जाएंगे. This is your controller. ठीक है, on the basis of that the controller output is in fact changing the plant input जो है, plant input change हो रही है और आप अपनी performance जो है वो बेहतर कर रहे हैं. So this kind of configuration is called cascade compensation system. में आपका controller या compensator जो है that is in cascade with the plant. ये feedback compensation system की configuration है जिसमें आपके पास जो GCFS है that is simple
गेन कंपोनेंट और फिर आप फीडबैक के अंदर जो है वो कंपनसेशन जो है वो यूज कर रहे हैं, दैट कैन बी, दिस कॉन्फ़िगरेशन कैन बी यूज्ड एज वेल। एंड द सिस्टम विद फीडबैक एंड कैस्केड कंपोजिशन, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे भी जो कैस्केड में यूज कर रहे हैं वहाँ पे भी आप पोल्स एंड जीरोस चेंज कर सकते हैं उनकी लोकेशन को, और यहाँ पे भी आप उनकी लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं। एंड यू नो दैट व्हाट इज the role of having feedback, because we have uh, done this कि sensitivity जो है वो आपके सिस्टम की रिड्यूस हो रही होती है when you are using your feedback system. So now we will be discussing all these configurations in this chapter, and how in that context we will be discussing the compensators, which are lead compensators, lag compensators, lead lag compensators, similarly proportional integral compensators, proportional derivative or differentiative compensators, and PID compensators. So these are the 6 controllers or compensators which we will be discussing in this chapter. Okay, we start this with the एग्जाम्पल। पिछली दो एग्जाम्पल्स जो हमने पिछले चैप्टर में की थी उसमें हमने कहा था कि हमने एडिशन ऑफ पोल की थी और एडिशन ऑफ जीरो की थी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, एंड वी आर सेइंग दैट इन सम केसेस परफॉर्मेंस कैन बी improved by cancelling a pole or zero. So let's consider an uncompensated system. ये मेरे पास अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम है जिसके अंदर GCFS जो है द कंट्रोलर या कंपनसेटर आपका है, इसकी वैल्यू जो है वो K है। द प्लांट ट्रांसफर फंक्शन जो है 1/s s+2 है, एंड जो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा दैट वुड बी क्या होगा जी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन? So K over S into S+2. K over S into S+2. That's my open loop transfer function. And again मेरा ख्याल है कि अब डिस्कस करने की शायद ज़रूरत नहीं है कि रूट लोकस हमने किस तरह से बनाया है, बिकॉज यहाँ से नज़र आ रहा है n is equal to 2 है, m is equal to 0 है। we will be having 2 open loop poles which will be located at 0 and -1. you can see एक open loop pole 0 पे पड़ा हुआ है, एक -2 पे पड़ा हुआ है। this is my open loop pole, this is my open loop pole, ठीक है। और नंबर ऑफ असेम्प्टोड्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, दैट इज n-m, सो दैट इज 2 number of asymptotes हैं। if you are interested in knowing the centroid, that is at -1, और जब आप एंगल्स देखते हैं asymptote के तो वो ±90 है, of course नज़र भी आ रहे हैं आपको। and if we calculate the breakaway point, that is again at s is equal to -1, and this is one of the examples जिसमें breakaway point और the centroid of the asymptotes हैं वो एक ही जगह पे हैं। it's not always necessary. एंगल ऑफ डिपार्चर अगर हम देखें तो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव ओपन लूप कॉम्प्लेक्स जीरोस और पोल्स, यानी फिर हमें एंगल ऑफ डिपार्चर्स और एंगल ऑफ अराइवल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रॉस ओवर पॉइंट की तरफ अगर हम जाएं तो देयर इज़ नो क्रॉस ओवर पॉइंट, यू कैन कंफर्म इट विद योर कैलकुलेशंस एज वेल। सो आपके पास जो k इज इक्वल टू 1 पे अगर हम देखें द सिस्टम जो है k इज इक्वल टू 1 पे सिस्टम क्या है? अंडर डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है, क्या चीज है मेमन? ओवर डैम्प्ड सिस्टम है। क्या है ओवर डैम्प्ड? ओवर डैम्प्ड सिस्टम्स की क्या डेफिनेशन है मेमन? सर रियल एंड डिस्टिंक्ट सर उसके रूल्स हैं। तो k इज इक्वल टू 1 तो ये है। कोई बैठा है इस क्लास में जिसको पता हो कि क्या है ये? सर क्रिटिकली डैम्प्ड। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है।
critically damped. Why? Because k is equal to 1 के ऊपर we are at this point and we are splitting. यानी k is equal to 1 पे आप real axis पे थे, but no, you are splitting. So this is the k is equal to 1 point. जहाँ पे k की वैल्यू 1 है, बट और आपके जो पोल हैं वो डुअल पोल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एट s इज इक्वल टू -1 पे. सो इट्स अ critically damped system with closed loop poles at s is equal to -1. और अगर हम स्टेप रिस्पॉन्स और क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम को देखें तो दिस इज समथिंग लाइक दैट. कोई ऑसिलेशंस उसके अंदर नहीं होती हैं. और अगर आप इसको देखें तो ये कब अप्रोच कर रहा है 1 को, इट्स अराउंड, अगर ये सेकंड्स हैं तो 6 सेकंड्स के बाद जो है ये आपका अपनी स्टेडी स्टेट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है. अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि अगर हम पोल्स और जीरोस की कैंसलेशन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अगर हम ओपन लूप पोल जो है हमारा उसको हम कैंसिल आउट करें. सो व्हाट्स हैपनिंग, अब मैं GC(s) जो है, पहले वो था आपका सिंपल के था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरा जो कंपनसेटर है उसका ट्रांसफर फंक्शन ये चीज़ है. सो क्या कर रहा है ये मेरे ओपन लूप पोल को कैंसिल आउट कर रहा है. अब आपके पास जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो ये हो गया कि s इज इक्वल टू -2 पे जो आपका पोल था दैट हैज बीन कैंसिल्ड, और अब आपके पास जो पोल है दैट इज एट s इज इक्वल टू -10 पे अब आपके पास आ गया. एनी क्वेश्चंस? अब अगर हम जी बोलें अगर कोई क्वेश्चन हो तो. No, sir, no question. Okay, so now what's happening, this is my open loop transfer function. In this case again n is equal to 2 है, m is equal to 0 है, और we have open loop poles at s is equal to 0 and -10, and open loop poles 0 और -10 पे हैं, और open loop zeros जो हैं वो again there are no open loop zeros. इस केस में number of asymptotes जो हैं वो 2 हैं, उनका angle जो है वो भी वही रहा, बट ब्रेक अवे पॉइंट जो है इस केस में वो क्या हो गया है, नाउ दिस इज -5. यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रेक अवे पॉइंट जो था वो -1 पे था, दैट वाज बिटवीन -2 एंड 0 बिकॉज द ओपन लूप पोल वाज लोकेटेड एट -2 और एक 0 पे था. तो 0 और -2 के दरमियान -1 पे आपके पास ओपन लूप पोल आया. बट हियर द ओपन लूप जो आपका क्लोज लूप पोल है या जो आपका ब्रेक अवे पॉइंट है वो आपके -5 पे है, एंड एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन k इज इक्वल टू 25 है. ठीक है. सो अब सिस्टम क्या है, ओवर डैम्प्ड है, क्रिटिकली डैम्प्ड है, क्या है इस पॉइंट पे? जी जी सर k is equal to 25 पे तो अभी भी critically damped है सर. क्रिटिकली डैम्प्ड ही है. गुड. सो अगेन इट्स अ क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, बट द क्लोज लूप पोल लोकेशन जो है वो बदल गई है. इनिशियली जो पिछला हमने केस देखा था उसमें एट दिस वाज एट s इज इक्वल टू -1 and now it is at s is equal to -5. So cancelling the open loop pole at s is equal to -2 क्या कर रहा है? कुछ चीज आपको अगर स्टेप रिस्पॉन्स को देखें तो कोई चीज आपको नजर आ रही है, कुछ चेंज नजर आई है? Again, as you are saying, it's a critically damped system, but आपने s is equal to -2 वाला पोल कैंसिल किया है और आपने एक और नया पोल इंट्रोड्यूस करा दिया s is equal to -10 पे. इससे क्या फर्क पड़ा है? सिस्टम तो क्रिटिकली डैम्प्ड ही रहा, बट हैव यू गॉट समथिंग फ्रॉम हियर? सर पोजीशन चेंज हो गई है. किसकी? सर k की वैल्यू चेंज हो गई. k की वैल्यू तो चेंज हो गई है, लेकिन उससे एडवांटेज हमें क्या हो रहा है?
सर जो हम पहले 6 सेकंड्स में अचीव कर रहे थे वो अब हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। जो थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, देखिए पहले आप ये काम जो है ये आप कर रहे थे, सॉरी आप पहले कर रहे थे तकरीबन 6 यानी इस पॉइंट पे ये आप 5 सेकंड्स पे पहुंच रहे थे, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसी पॉइंट पे आप तकरीबन 1 सेकंड्स में पहुंच रहे हैं। सो इट्स 5 टाइम्स आपको जो है वो फास्टर रिस्पांस जो है वो मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई दीज टाइप ऑफ कंपनसेटर्स आर कॉल्ड लीड कंपनसेटर्स, कि इसने आपके परफॉर्मेंस को लीड किया है, लीड दे रहा है। एग्रीड? अच्छा, ये जो हमने कैंसलेशन की है पोल की, दैट वाज एग्जैक्ट कैंसलेशन, ठीक है। s+2 वाला जो जी अपना s+2 वाला जो पोल था, यानी s इज इक्वल टू -2 पे जो पोल रखा हुआ था, हमने अपने कंपनसेटर के अंदर एग्जैक्ट जीरो जो है वो s इज इक्वल टू -2 पे प्लेस किया है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये दोनों जो है ये कैंसिल आउट हो गए। Now we are moving towards the approximate cancellation of closed loop zeros. So let's see that what's happening. Okay, sometimes a closed loop zero can degrade performance, and it may be desirable to approximately cancel the closed loop zero with a nearby closed loop pole. So अब situation अगर देखें तो ये मेरे पास एक system है. Of course this is an uncompensated system because GCFS जो है that is equal to K, और GPFS जो है that is S plus 0.5 divided by S square. So इसमें हमारे पास एक zero है which is located at S is equal to -0.5, and मेरे पास double pole है at S is equal to 0. So यहाँ मेरे पास double pole जो है वो 0 पे रखा हुआ है। सो रूट लोकस डिज़ाइन करना तो मेरा ख्याल है आपको इशू नहीं होना चाहिए। जस्ट गो थ्रू इट, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम वी कैन डिस्कस, जस्ट स्पेंड 2-3 मिनट्स ऑन दिस। कि कोई इशू आपको नज़र आ रहा है? सर इसमें भी हमारे जो पोल्स हैं वो रियल एक्सिस में, तो एंगल ऑफ डिपार्चर तो हमारा कैलकुलेट नहीं होना चाहिए ना सर? नहीं हो रहा, होना भी नहीं चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो सर हमने ये पर्टिकुलर पाथ हमने क्यों लिया हुआ है? हम रेक्टेंगुलर पाथ क्या ले सकते हैं? आप क्या नाम है आपका? सर इब्राहिम सर। इब्राहिम बेटा प्लीज गो टू चैप्टर नंबर 2। देखिए हम बार बार इस चीज़ को डिस्कस करते रहे हैं कि हमारे पोल्स जो हैं वो किस तरह से पड़े हुए होते हैं। वी डिसाइडेड अबाउट दिस सेमी सर्कल, शायद आपको याद हो। वी सेड दैट दिस इज, ये जो यहाँ से जो लोकेशन बनती है दैट वाज परहैप्स ओमेगा एन रेडियस पे आपके पास पोल पड़े होते हैं। दिस इज जीटा ओमेगा एन, दैट वाज योर ओमेगा। सो अगर आप इस फिगर को देखें तो पोल्स की लोकेशन जो है वो हमेशा इसी तरह से ही चलती है, सर्कुलर चलती है, बिकॉज द पोल्स आर एट द रेडियस ऑफ ओमेगा एन, जो भी आपके सिस्टम्स हैं, कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स। राइट सर। ठीक है, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस सर। ओके, एनीथिंग एल्स? ब्रेकअवे पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं क्या है तो क्या बताएंगे आप? जीरो सर। -1 ब्रेकअवे पॉइंट कैसे हो सकता है सर? वो ब्रेक इन पॉइंट। वो ब्रेक इन पॉइंट है। दिस इज ब्रेक इन पॉइंट, दिस इज ब्रेक अवे पॉइंट। यहाँ से उठा है आपका रूट लोकस और ब्रेक इन पॉइंट की तरफ गया है। दो असिम्पटोट्स थे, एक जो जीरो की तरफ जा रहा है अब, और दूसरा आपका असिम्पटोटिक बिहेवियर है उसका, वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है व्हेन k इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। एग्रीड? यस सर। ऐसे ही है ना? अच्छा, अब क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम किस वक्त है? सर k इज इक्वल टू 2 पे एट -1। k इज इक्वल टू 2 पे और s इज इक्वल टू -1 पे आपके पास डबल पोल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। और अब हम अगर आप इस सिस्टम को कंपेयर करना चाहें अपने पहले वाले सिस्टम के साथ, तो k इज इक्वल टू 2 पे ट्रांसफर फंक्शन अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो वो क्या होगा? व्हाट विल बी द ट्रांसफर फंक्शन एट k इज इक्वल टू 2?
क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। कोई कॉपी पेंसिल सामने रखी हुई है कोई जो बता सके k इज इक्वल टू 2 पे ट्रांसफर फंक्शन क्या है? Sir, it is S सर जी सी ऑफ एस टाइम्स जी पी ऑफ एस और के इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। जी बताएं ना, होगा क्या? आपके पास तो सारी Sir, चीजें मौजूद हैं। S टू square इंटू एस plus प्लस 0.5 ठीक है, 2 इंटू एस प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। एस प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज एट k इज इक्वल टू 2। और इनफैक्ट अब जैसे जैसे, और k इज इक्वल टू 1 पे क्या था? दैट वाज इक्वल टू 1 ओवर एस प्लस 1 स्क्वायर। ये वही वाला जो पहले आप देख रहे थे, ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं अगर इस गेन को इंक्रीज करता हूं, अब मैं k को इंक्रीज करने जा रहा हूं, तो क्या होगा? ये पोल इस तरफ जा रहा है और ये पोल इस तरफ जा रहा है। सो अगर सपोज मैं k को इंक्रीज करता जाता हूं, व्हाट विल हैपन? ये पोल जो है ये नज़दीक होता जाएगा इस ज़ीरो के, और पोल्स और ज़ीरोस जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो कैंसलेशन इफेक्ट जो है आपने डीएसपी में भी देखा होगा और कंट्रोल में भी अब आप देख रहे हैं। तो पोल जो है, ये जो नज़दीक आने वाला पोल है, दैट वुड स्टार्ट कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ दिस ज़ीरो। ठीक है। सो आप इसी तरह से जब आप इसको लेते जाते हैं तो नज़दीक, तो व्हाट हैपन्स कि एट k इज इक्वल टू 10 आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन है वो आपका बन जाता है 10 इंटू एस प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय एस प्लस 0.53 एंड एस प्लस 9.47। ठीक, इसका मतलब है ये पोल जो है ये बिल्कुल करीब पहुंच रहा है, 0.53 पे पहुंच रहा है, और ये वाला जो पोल है ये -9.47 पे आपका अप्रोच कर रहा है एट k इज इक्वल टू 10 पे। और क्या होना शुरू हो जाएगा? एट s is equal to minus 0.53, this pole will be nearly cancelling the closed loop 0 at s is equal to minus 0.5, and the approximate transfer function will be what? That was 9.47 divided by s plus 9.47. So इस बात का मतलब है कि effectively या approximately there will be only one pole जो कि कर रहा होगा रिस्पॉन्स के अंदर वो कर रहा होगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपके पास ये परफॉर्मेंस जो है आपको मिल रही है। ठीक, सो इन फैक्ट द सिस्टम, अब वो सिस्टम क्या है, यानी k इज इक्वल टू 2 के बाद आपका सिस्टम जो है वो अंडर डैम्प्ड हो गया है, बिकॉज दे आर डिस्टिंक्ट पोल्स एट रियल एक्सिस। सो k इज इक्वल टू 10 तक भी वो अंडर डैम्प्ड ही है, एंड यू आर वाचिंग इट हियर कि आपके पास ओवरशूट जो है वो आपको नजर आ रही है। दिस इज बिकॉज द सिस्टम इज मूविंग फ्रॉम क्रिटिकली डैम्प्ड टू अंडर डैम्प्ड सिस्टम। बट एट k इज इक्वल टू 10 जो पोल की लोकेशन है वो -0.53 है, which is approximately that it has started cancelling the effect of
this 0, and as a result of that your system is the response जो है वो उसका बेहतर होना शुरू हो गया. ठीक है, so approximate cancellation of zeros can be done in this way. Questions please. Sir, how did we find out कि k is equal to 10 पे हमारे पास पोल 0.53 और 9.47 पे है? k is equal to 10 पे अगर आप अपना ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगी, ये वाला ट्रांसफर फंक्शन आपने कैसे फाइंड आउट किया था? You have open loop transfer function आपके पास मौजूद है. If you are interested in knowing the closed loop transfer function TFS क्या चीज होता है? So TFS is equal to, यहाँ से आप कर सकते हैं ना? So that was GFS divided by 1 plus GCFS into GPFS. हो सकता है ना? Negative feedback system है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है. So that would be something in terms of k, और ये पैरामीटर्स आ जाएंगे. When k is equal to 2, this is in fact k. So k is equal to 2 तो ये हो गया. k is equal to 10 हुआ तो ये हो गया. ठीक है ना? एंड ऑफ कोर्स उनकी जो लोकेशंस हैं वो भी चेंज हो रही हैं. सो अगर आपके पास कुछ पोलिनोमियल आएगा ना नीचे, तो उस पोलिनोमियल के रूट्स बनाए हुए हैं, इसको यूं दिखाया हुआ है. अदरवाइज देयर विल बी सम पोलिनोमियल ना. हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? Yes sir. So 1 plus GCFS GPFS, that's the characteristic polynomial. आप इस ट्रांसफर फंक्शन में k की वैल्यू 10 डालेंगे तो you will be getting some polynomial s square plus 2GFS suppose plus h square, something like that. So ये जो g और h की वैल्यू हैं वो जब आप उनको फाइंड आउट करेंगे या उनके रूट्स निकालेंगे, so that's s minus a, s minus b. So ये s minus ये a और b की वैल्यूज हैं. And corroborating with our analysis कि एक जो पोल है वो 0 की तरफ जा रहा है, so that is minus 5.53 वाला पोल जो है वो इस तरफ जा रहा है इस डायरेक्शन में, और minus 9.47 वाला जो पोल है वो इस तरफ जा रहा है. Agreed? Yes sir. Okay. Mehman, any question beta? No sir. Okay gentlemen, I leave it here. और इंशाल्लाह ताला से मुझे बता दीजिए, सीआर बैठे हुए हैं? यस सर. सीआर ये बताइए कि अब क्विज जो है वो एलएमएस पे हमने लेना है, सो एवरीबॉडी शुड बी कंफर्टेबल विद यूजिंग एलएमएस, क्योंकि अगर जिन लोगों ने क्विज मिस किया फिर मैं उनको ऑनलाइन हर बंदे के साथ 5-5-10 मिनट बैठूंगा और फिर मैं वाइवा भी लूंगा और वो मैं क्विज जो है उसके सामने रखूंगा और मेरे सामने मैं इंडिविजुअल्स के साथ फिर वो क्विज जो है मैं कंडक्ट करूंगा. सो इट्स बेटर कि एलएमएस के साथ किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें पहले बता दे, सो दैट कि उस मसले को सॉल्व किया जाए पहले. सो आप लोग एलएमएस को अप्रोच कर रहे हैं? वो डिस्कस कर देते हैं सर. फिलहाल तो कोई इशू डिस्कस नहीं हुआ एलएमएस का. पहले सर कोड का इशू था बट वो भी अब रिजॉल्व हो गया. एलएमएस मकसद आप लोग एलएमएस जाते हैं, वहां से चीजें डाउनलोड करते हैं, कोई मसला तो नहीं है वहां से? नो सर. जी बाकी क्लास के लोग भी बैठे हुए हैं, अगर बैठे हैं तो बता दें. सर जब हम एलएमएस पे क्विज देते हैं तो वहाँ पे बहुत स्लो